Hello everyone, welcome to your physics class. Yesterday I have discussed about the first two applications of the dimensional analysis, okay? How we can find out the unit of a physical quantity and how we can convert a physical quantity from one system to other system by using dimensional analysis. Now today I am going to continue this topic, applications of dimensional analysis. My third point is to check the dimensional correctness of a given physical relation. Actually students, we can also check whether a relation is dimensionally correct or not by using dimensional analysis. For this, we should know the principle of homogeneity. What is the principle of homogeneity? According to this principle, the dimensions of each term on both sides of an equation must be the same. Equation according to this principle. First of all, we check whether each term having the same dimension of or not. Okay, if the relation having the same dimensions of each term actually, so you will say the relation is dimensionally correct. For example, we have taken this equation, first equation of motion, v is equal to u plus at. In this equation, you will check either each and every term having the same dimension or not. If each and every term of this equation, here are three terms actually, first, second and third. अगर इन तीनों टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आते हैं तब उस केस में आप इसको डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन मानते हैं. ओके, यू से द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ओके, तो यहाँ आप देखिएगा v वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, v का डायमेंशनल फॉर्मूला lt-1 होगा, u का भी lt-1 होगा एंड द थर्ड टर्म इज at. देखिए ये at इज अ कंप्लीट टर्म, ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है. एंड प्लस the dimensional formula of acceleration will be lt-2 and t का dimensional formula t हो जाएगा, ठीक है. and next step में आप देखिएगा it becomes lt-1 and it is lt-1 and now this is lt-2 and t, okay, and t to the power 1, here it is t to the power 1, so it becomes what, ये t to the power -2 है, ये +1 है, okay, finally it becomes t to the power -1, lt-1. now you see here each and every term having the same dimensional formula, so you will say this relation is dimensionally correct. तो स्टूडेंट इस तरह से हम किसी भी रिलेशन को हम चेक कर लेते हैं whether it is correct or not. Okay, so you will say this equation is dimensionally correct. Students, one thing is very important. Okay, you should remember a dimensionally correct equation may or may not be physically correct. ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो फिजिकली करेक्ट भी होगा, ठीक है, फिजिकली भी करेक्ट होगा. जैसे हमने देखा ये इक्वेशन है x s is equal to ut minus half at square. It is not a correct relation because the Newton's third second law is s is equal to ut plus half at square, but here it is negative sign. Okay, so this relation is not physically correct, but we'll check whether this relation is dimensionally correct or not. तो यहाँ आप देखेंगे दिस s का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, l होगा, बिकॉज s इज डिस्प्लेसमेंट, सो द डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी l. ut, u का डायमेंशनल फॉर्मूला lt-1 होगा एंड t का t हो जाएगा, टाइम का t होगा, ठीक है, बिकॉज वी विल नॉट कंसीडर द कांस्टेंट टर्म व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला. ओके, व्हेन वी राइट अ डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हियर वी विल नॉट कंसीडर दिस हाफ को हम यहाँ नेग्लेक्ट करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है. Then you will take only the dimensional formula of A. This is lt-2 and dimensional formula of t will be t because it is square, so it becomes t square. Clear? Students, next step में आप देखते हैं ये l होगा, ठीक है, ये lt-1 है और यहाँ पर t की पावर +1 है, ठीक है, so it becomes l. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -1 है, +1 है, l बचेगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस यहाँ आप देखिएगा it is t to the power -2 and it is t to the power +2, so it will be cancel out, so you will get only l. Now you see that each and every term having the same dimensional formula, and by homogeneity principle, by the principle of homogeneity, you can say this relation is dimensionally correct. Okay, but as you know, the correct relation is s is equal to ut plus half at square, so this is not physically correct. तो physically correct नहीं है but dimensionally correct है, तो इसको आप याद रखिएगा. a dimensionally correct equation may or may not be physically correct. ठीक है, जैसे इसमें देखा आपने ये रिलेशन, ये इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है, बिकॉज द करेक्ट रिलेशन इज द सेम एक्चुअली v is equal to u plus at. तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है. क्लियर? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो फिजिकली भी करेक्ट होगा. जैसे कि आपने इस एग्जांपल में देखा
इसके बाद हम देखते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं एज ए होमवर्क, तो प्लीज डू दीज एग्जाम्पल्स, ओके, प्रैक्टिस दीज एग्जाम्पल्स. FS, check whether these relations are correct or not, dimensionally correct or not, okay. So how you check the relations are dimensionally correct or not? First you will write the dimensions of left hand side and you will check the dimensions of each term on right hand side. Then you will see, you will check whether each and every term having the same dimensional formula or not, okay. On behalf of this, you will say that about the relation. Clear? Okay students, I have taken some other examples here. देखिए ये relations जो आप यहाँ लिखे हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर्स में आप आगे के चैप्टर्स में इनको पढ़ेंगे, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर सिर्फ हम इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं कि हम किस तरह से किसी भी रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ठीक है. तो इसलिए कुछ रिलेशंस ऐसे भी हैं जो आपके लिए अननोन है, तो इसमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है. यहाँ पर आपको डिफाइंड होंगे ईच एंड एवरी टर्म एक्चुअली. जैसे यहाँ रो इज इक्वल टू 3g/4πrg गिवन है, ठीक है. दिस इज द अननोन रिलेशन फॉर यू एक्चुअली. इससे पहले जो रिलेशन मैंने बताए थे वो नोन रिलेशंस थे, आपको मालूम है वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस से लिए गए थे, ठीक है. तो यहाँ पर ये अननोन रिलेशन है, बट यू विल हैव टू गिवन, एक्चुअली आपको गिवन होगा, सारे टर्म्स आपको गिवन होंगे, डिफाइंड होंगे, ओके. जैसे कि यहाँ पर रो है, डेंसिटी है, g जो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इस तरह से ये r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी, मतलब ये टर्म्स आपको गिवन होंगे, डिफाइंड होंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालने में, पुट करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, एक्चुअली वी आर गोइंग एक्चुअली टू चेक वेदर दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल find the dimensional formula of left hand side. तो in left hand side there is a rho actually, and rho is density, and density का formula होता है mass upon volume. mass का dimensional formula m होगा, volume का l to the power 3 होगा, ठीक है. इस तरह से it becomes l ml to the power -3. तो this is the dimensional formula of rho density, ठीक है, and it is the left hand side. Now we'll take the right hand side. right hand side में टर्म कौन सा है, ये टर्म है, लेकिन इसमें आप देखिएगा 3/4π, इट इज अ कांस्टेंट टर्म. सो आपको मालूम होना चाहिए डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट टर्म पर डिपेंड नहीं करती है, कांस्टेंट्स को डिफाइन नहीं करती है, इसलिए हम 3/4π को, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है. तो इसको हम जो है नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पर, एंड ओनली यू विल राइट g/rg, इसको आप लिखेंगे वेरिएबल टर्म्स है, ठीक है. तो g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला lt-2 होगा, ठीक है. r क्या है यहाँ पर, r रेडियस है, आपको गिवन है यहाँ, तो रेडियस का डायमेंशनल फार्मूला l होगा, बिकॉज रेडियस इज द लेंथ एक्चुअली. और g क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है, जो डायमेंशनली कांस्टेंट्स जो क्वांटिटीज हैं उनकी मैं डायमेंशनल फार्मूला निकाल चुका हूँ पहले, ठीक है. तो g का डायमेंशनल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इट इज m to the power -1, l to the power 3, t to the power -2. तो सिंपलीफिकेशन के बाद में यू गेट दिस m l to the power -3, ठीक है. कैसे आएगी, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और t to the power -2 है, यहाँ पर t to the power -2 है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. क्या मिलेगा आपको, ये m to the power -1 और l to the power +3 है, ठीक है. जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m प्लस में हो जाएगा, m to the power +1 हो जाएगा, और l to the power +3 था, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है. इस तरह से आपको राइट हैंड साइड में डायमेंशनल फार्मूला ml to the power -3 मिलता है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको सेम डायमेंशनल फार्मूला मिला था, ml to the power -3. सो यू कैन से दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. तो इस तरह से हम किसी भी रिलेशन की कंसिस्टेंसी को चेक कर लेते हैं, ओके, बाय यूजिंग होमोजेनिटी प्रिंसिपल. क्लियर स्टूडेंट्स? एंड वी हैव टेकन द अदर रिलेशंस हियर, h is equal to 2t cos theta r d g, ठीक है. और यहाँ पर डिफाइंड है क्वांटिटीज. h क्या है यहाँ पर, हाइट ऑफ लिक्विड है, t सरफेस टेंशन है, इसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको. r यहाँ क्या है, r इज द रेडियस ऑफ ट्यूब है एक्चुअली, d इज डेंसिटी, ठीक है, और g आपको मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द लेफ्ट हैंड साइड टर्म, ओके. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, h है, h का डायमेंशनल फॉर्मूला l हो जाएगा, बिकॉज h इज हाइट, सो इट इज ए लेंथ, सो लेंथ डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, लेंथ का l होगा. इसी तरह से राइट हैंड साइड वाला टर्म हम लेंगे, तो राइट हैंड साइड में देखिए कांस्टेंट टर्म्स क्या है यहाँ पर, 2 इज कांस्टेंट हियर, तो सो वी विल नेग्लेक्ट, वी विल रिमूव दिस 2 एक्चुअली, वी विल टेक ओनली 2 और cos थीटा. देखिए थीटा क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है थीटा, एंगल मैंने बताया था आपको, एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. क्लियर? सो वी विल रिमूव दिस 2 एंड cos थीटा, वी विल टेक ओनली t/rdg, ठीक है. t और rdg आप सिर्फ कंसीडर करेंगे. t सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स याद रखिएगा स्टूडेंट, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इट इज द
okay, formula of surface tension. So we will write here F upon L upon RdG. Clear? और स्टूडेंट्स अगेन वी हैव टेकन दिस F upon L को नीचे लेके जाएंगे तो L RdG हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से फिर now we'll write the dimensions of each and every term. What is the dimensional formula of F? It is mLt minus 2. And what is the dimensional formula of L? It is L. R का dimensional formula R is what? R is radius of tube, so it is a length actually. So dimensional formula क्या होगा? L होगा. ठीक है. D का dimensional formula, D is density. Already you know the dimensional formula. It is mLt minus mL to the power minus 3. mL to the power minus 3. Clear? And G is acceleration due to gravity. Dimensional formula will be Lt minus 2. Clear? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला लिखा है. फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फार्मूला आपने यहाँ लिखे हैं. ठीक है, इसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे तो देखिएगा यहाँ देखिए L टू द पावर 1 है, यहाँ भी L टू द पावर 1 है, यहाँ भी L टू द पावर 1 है. तो पावर टोटल प्लस का पावर कितना हो गया? 1 2 3. ये प्लस का 3 हो गया. ठीक है, और यहाँ पर L टू द पावर माइनस 3 है, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे. इससे ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स M से M कैंसिल आउट हो जाएगा. क्लियर? और ये t टू द पावर माइनस 2 से t टू द पावर माइनस 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा. देन फाइनली वी गेट ओनली L. क्लियर? तो स्टूडेंट्स इन लेफ्ट हैंड साइड यू हैव गॉट इट इज L and in right hand side the same dimensional formula you get. Now you can say this left hand side is equal to right hand side, so the relation is dimensionally correct. Clear students? समझ में आ गया होगा? Okay students, now we have taken the next application to derive formulas. Students, by using dimensional analysis we can also derive the formula, we can derive the relation if we know the dependence of a physical quantity okay on the other physical quantities. Okay, if we know the factors upon which a given physical quantity depends, we can find the relation between the physical quantity and those factors. अगर हमें ये मालूम है कि एक फिजिकल क्वांटिटी किन अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो हम उन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं. यानी फिजिकल क्वांटिटी और उन अदर फैक्टर्स के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं. जैसे एग्जांपल यहाँ मैंने लिया है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का रिलेशन हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. और आपको गिवन है, मान लेते हैं लेट अ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अ फंक्शन ऑफ मास. ठीक है, किस पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड? फर्स्ट गिवन है आपको मास ऑफ बॉब. बॉब के मास पे डिपेंड करता है m पर. ठीक है, और सेकंड आपको दिया है इफेक्टिव लेंथ L पे डिपेंड करता है. और थर्ड आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G पे डिपेंड करता है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको गिवन है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, दिस टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स एक्चुअली. मास ऑफ बॉब m, इफेक्टिव लेंथ L, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि G. इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. अब हम किस तरह से इस टाइम पीरियड का इन अदर फैक्टर्स के साथ में रिलेशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स. ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो. तो यहाँ आपको समझना है, मैंने स्टेप्स लिए हैं, सम स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके आप जो है रिलेशन निकाल सकते हैं टाइम पीरियड का इन तीनों फैक्टर्स के साथ में. ठीक है, मास, लेंथ और G के साथ में रिलेशन निकाल सकते हैं. तो चलिए हम देखते हैं स्टेप 1. assuming the function to be product of power function of m, L and G. First of all we'll write the physical quantity. Okay, this physical quantity with these all factors. Okay, by this actually this is proportionality sign. यानी कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे, प्रोडक्ट में लिखेंगे, पावर के साथ हम प्रोडक्ट में लिखते हैं सारे फैक्टर्स को. ओके, सीक्वेंस हम वही रखेंगे जिस सीक्वेंस में आपको गिवन है. आपको क्वेश्चन में गिवन है कि if the time period depends on mass, effective length, acceleration, then find out the relation between them. Okay, so you will write the same sequence. Actually this T depends on mass, it also depends on length, it also depends on G. इसी तरह से हमने सीक्वेंस यहाँ लिया है. ओके स्टूडेंट्स, पावर्स हमने ली हैं A, B, C. ठीक है, क्लियर. उसके बाद हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब when you remove this proportional sign you get a proportionality constant. ठीक है, हम जब इसको रिमूव करेंगे proportionality sign को, we get a proportionality constant K. Okay, and it becomes T is equal to K m to the power A, L to the power B and G to the power C. Because students this dimensional analysis does not define the constant dimensions of a constant actually, dimension of a number. Okay, because number is a dimensionless constant you can say. Okay, so where K is a number
so it is a dimensionless constant, so we will neglect, we will remove this k, we will not consider here, okay, this k. So the relation becomes t is equal to m to the power a l to the power b g to the power c. इक्वेशन आपने फर्स्ट इसी को माना है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लिया है आपने, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जब इसको करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हमने k को नेग्लेक्ट किया है, क्योंकि k का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ हमें उन फिजिकल क्वांटिटीज को कंसीडर करना है जिनके डायमेंशन फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम उनके डायमेंशन फार्मूलाज लिखने जा रहे हैं। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, यहाँ तक आप कर लिए, पहले आपने क्या किया कि t किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बस, ठीक है, उसको प्रोपोर्शनल साइन के साथ लिखेंगे, फिर आप प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेते हैं, k को फिर उसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं आप एक्चुअली, ठीक है, उसको फिर रिमूव करके आप फिर क्या करते हैं, उनके डायमेंशंस लिखते हैं, जैसे t का डायमेंशन फार्मूला t ही होगा और मास का डायमेंशन फार्मूला m होगा कैपिटल, उसकी पावर a है, l का डायमेंशन फार्मूला लेंथ का l होगा, इसकी पावर b है, और g एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, lt-2 है, एक्सेलरेशन है ये, और इसका पावर c हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ आपको ये समझना है कि t को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं m, क्योंकि देखिए यहाँ पर टाइम है उसमें जो सिर्फ डायमेंशन जो होगी वो किसकी होगी, टाइम की होगी, ठीक है, बाकी अदर टर्म्स में जो है नो डायमेंशन एक्चुअली, जैसे मास में कोई डायमेंशन नहीं होगी, लेंथ में कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो टाइम मास लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं m0 l0 t1, ओके, these two things are same एक्चुअली, और मैं बताऊंगा आपको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हम आगे जो पावर्स का कंपेयर करेंगे तो उसमें हमें हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद मास का पावर a है, m टू द पावर a, देखिए यहाँ पर l का पावर b है और यहाँ l का पावर c है, तो टोटल l का पावर b प्लस c हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों का तो पावर्स ऐड हो जाती हैं प्रोडक्ट में, ठीक है, तो इस तरह से l टू द पावर b प्लस c हो जाएगा, और t का पावर कितना हो जाएगा 2c, ठीक है, -2 है और यहाँ पर पावर c है, तो इट बिकम्स 2c। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें m और l, m l t के पावर्स मिल जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अब यहाँ पर आप करना क्या, एक्चुअली हम लेफ्ट हैंड साइड की पावर से राइट हैंड साइड की पावर को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो हियर वी विल कंपेयर द ओके पावर्स ऑफ राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टेप 3 में आप क्या करने जा रहे हैं, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ m l t ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो दोनों साइड की पावर को हम इक्वेट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर a है, a किसके इक्विवेलेंट होगा, 0 के, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह से l की पावर b प्लस c है यहाँ, और इस साइड आप देखिएगा l का पावर 0 है, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह से t का पावर -2c है और यहाँ पर t का पावर 1 है, तो -2c इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। यही वजह थी कि हमने t को इस फॉर्म में लिखा था, ठीक है, क्योंकि पावर्स को इक्वेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें a 0 मिलता है, b प्लस c इज इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ देखिए -2c इज इक्वल टू 1 है, तो c इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको -1/2। इस c की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो b -½ हो जाएगा। जब c इज इक्वल टू -½ यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b -½ इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स you have calculated the powers, a is equal to 0, b is equal to ½, c is equal to -½ अब इन पावर्स को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इसको इक्वेशन 1 आपने लिया था, ठीक है, और इसी इक्वेशन में हम इन पावर्स को पुट करेंगे, a b c की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग these values in equation 1, then what you will get, you get t is equal to k as it is रहेगा, m का पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा, ठीक है, और इसी तरह से l का पावर क्या है, l का पावर b की वैल्यू ½ है और g की पावर c है, और c की वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पर -½ हो गया, तो g का पावर -½ हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको t इज इक्वल टू मिलता है k, और ये l टू द पावर ½ और g टू द पावर -½ g को अपॉन में लेके जाएंगे तो l अपॉन g का होल पावर ½ हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं t इज इक्वल टू k, इसको हम रूट में लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज पावर इज ½ सो वी कैन ओके राइट डाउन दिस l अपॉन g इन रूट, तो रूट ओवर l अपॉन g, तो t इज इक्वल टू मिलता है आपको k रूट ओवर l अपॉन g। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर k जो टर्म है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट एक्चुअली, और जो कांस्टेंट्स होते हैं उनको हम मैथमेटिकल एनालाइसिस से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, डायमेंशनल एनालाइसिस से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, इसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो डायमेंशनल एनालाइसिस के कुछ फेलियर्स हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ओके, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, बल्कि कल आप मंडे में आपका जो है लास्ट टॉपिक रहेगा इसका,
एरर्स एनालिसिस में पढ़ाऊंगा आपको, उसी में मैं लिमिटेशंस भी डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो मंडे में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ k सिंस इट इज ए नंबर, बिकॉज ये नंबर है इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसको प्रोवाइड नहीं कर पाता है। बट बाय मैथमेटिकल एनालिसिस इट इज फाउंड दैट k इज इक्वल टू 2 पाई। मैथमेटिकल एनालिसिस से हम k की वैल्यू फाइंड कर पाते हैं और उसकी वैल्यू आती है 2 पाई। इस तरह से जो इसका कंप्लीट रिलेशन होगा, एग्जैक्ट रिलेशन होगा टाइम पीरियड का, जिसका सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, वो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर l अपॉन g। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट्स इन ए रिलेशन। स्टूडेंट्स, आपको कुछ रिलेशन इस तरह के दिए होते हैं जिसमें कुछ कांस्टेंट टर्म्स होते हैं और उसके डायमेंशन फार्मूला फाइंड करने के लिए आते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, अक्सर कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है कि फिर से हम वही करेंगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का हम इसमें यूज करेंगे टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। जैसे कि ये रिलेशन मैंने लिया है एज एग्जांपल f इज इक्वल टू a प्लस bx। क्लियर? स्टूडेंट, इस रिलेशन में आपको a और b के डायमेंशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, और डायमेंशन एनालिसिस का हम यूज करेंगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का हम यहाँ पर यूज करेंगे। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, इफ ईच एंड एवरी टर्म having the same dimension then relation is dimensionally correct। ओके, या आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई रिलेशन है, ठीक है, तो उसके जो टर्म्स, जो भी जितने भी टर्म्स दे रखे हैं उन सभी के डायमेंशंस फार्मूलाज जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, जैसे कि f इज इक्वल टू a प्लस bx, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, f वन टर्म हो गया, a सेकंड टर्म हो गया, bx थर्ड टर्म हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच एंड एवरी टर्म हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का होगा वही, यहाँ पर f जो है वो फोर्स है एक्चुअली, और x जो है वो डिस्टेंस है, डिफाइंड है ये दोनों टर्म्स। ठीक है, और a b कांस्टेंट है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको निकालने हैं। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं, जब उसके अकॉर्डिंग सारे टर्म्स का डायमेंशन, सभी टर्म्स का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, तो ये कह सकते हैं कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का होगा वही a का भी होगा। ठीक है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का होगा वही bx का भी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्योंकि हमें a निकालना है, उसके बाद b निकालना है, तो पहले हम क्या लेते हैं, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। क्लियर? तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू होगा द डायमेंशन फार्मूला a विल बी इक्वल्स टू द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। क्लियर? और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mlt-2 हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया, आपने a का डायमेंशन फार्मूला निकाल दिया। ठीक है, इसी तरह से जो डायमेंशन फार्मूला देखिए f का होगा वही bx का भी होगा। ठीक है, तो bx इज इक्वल टू, फिर से हम फोर्स के इक्विवेलेंट रखते हैं। स्टूडेंट्स, ये चीज आपको अपने माइंड में रखना है कि सभी टर्म्स के डायमेंशन फार्मूला सेम होते हैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो जो a का है वही जो f का है, देखिए वही a का भी होगा। ठीक है, जो bx का है वही f का भी होगा। इस तरह से सभी के सेम होंगे, तीनों के सेम होंगे। तो जब तीनों के सेम होंगे तो हम इसके a को f के इक्विवेलेंट भी रख सकते हैं और bx को हम f के इक्विवेलेंट रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा a का डायमेंशन फार्मूला मिल जाता है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इस तरह से हम bx का निकालेंगे, तो bx इज इक्वल टू क्या हो गया, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। क्लियर? निकालना हमें किसका है, b का। x तो हमारे लिए नोन है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला मालूम है, तो इसको हम अपॉन में लेके जाएंगे। ओके, तो दिस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपॉन x होगा। ठीक है, और f का डायमेंशन फार्मूला आपको मालूम है, दिस इज mlt-2 and upon x is l, because x is length, so dimension formula will be l here. Okay, and this l is cancel out by this l, so you will get this mt to the power minus 2. This is the dimension formula of b. Okay, तो ये आपका सॉल्व हो गया। आपको a और b के डायमेंशन फार्मूलाज निकालने थे, एक आपको mlt-2 मिलता है और b का आपको mt-2 मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल है, इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने एक और लिया एग्जांपल, यहाँ देखिएगा, ये वंडरवॉल गैस इक्वेशन है, P प्लस a अपॉन v स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू RT। पहले तो आपको ये स्टूडेंट्स मालूम होना चाहिए कि P क्या है, यहाँ पर v क्या है और R क्या है, T क्या है। ठीक है, तभी आप ये a और b के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो हियर स्टूडेंट्स, P इज प्रेशर, v इज वॉल्यूम, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेंपरेचर। ये वंडरवॉल गैस इक्वेशन है। क्लियर स्टूडेंट्स? और नाउ प्रेशर का फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला, प्रेशर P इज इक्वल टू होता है F अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और F का mlt-2, A का होगा, एरिया का होगा L2। ठीक है, तो L2 को ऊपर लेके जाएंगे, ये +1 है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये -2 हो जाएगा। तो इस तरह से इट बिकम्स m l-1 t-2 हो जाएगा। ठीक है,
ये डायमेंशन फार्मूला हमने प्रेशर का निकाल लिया, वॉल्यूम का क्या होगा L3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें P का और V का मालूम है। अब अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, नाउ वी विल यूज द होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म विल बी सेम एक्चुअली। देखिए यहाँ पर देखिएगा ये टर्म ये सब अलग अलग टर्म्स हैं एक्चुअली, और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आपको एक चीज और बतानी थी मुझे कि आप सेम फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं और सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तभी पॉसिबल होगा यहाँ पर इनका एडिशन, और ये रिलेशन करेक्ट रिलेशन है, वंडरफुल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इन दोनों का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप टाइम को टाइम में ऐड कर सकते हैं, टाइम को आप डिस्टेंस में लेंथ में ऐड नहीं कर सकते। इस तरह से लेंथ को लेंथ के साथ ऐड कर सकते हैं, आप लेंथ को मास के साथ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ आप या तो आप उसको एडिशन ले सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं। इस तरह से देखिए v माइनस b है, तो v में से b को आप तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब ये दोनों क्वांटिटीज सेम होंगी, ठीक है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये बात तो समझ में आ गई कि p और ये सब फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सेम है, इसलिए आपने यहाँ पर एडिशन लिया है और यहाँ सब्ट्रैक्शन लिया है। तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताना था आपको कि किस तरह से आपको जो है इनके डायमेंशंस निकालने हैं। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल का हम यूज करेंगे, तो जो डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का होगा वही इसका भी होगा, बिकॉज ईच एंड एवरी टर्म हैविंग द सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये दो टर्म्स हैं, तो यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं ए का डायमेंशनल फार्मूला। तो जो डायमेंशनल फार्मूला इस कंप्लीट क्वांटिटी का होगा वही p का भी होगा। सो वी विल टेक द ओके दिस a upon v square equals to this pressure, क्लियर स्टूडेंट्स। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो p v स्क्वायर हो जाएगा, ओके। p का डायमेंशनल फार्मूला आपने अभी निकाला है ml - 1 t - 2, और v का डायमेंशनल फार्मूला L3 है और उसका भी पावर 2 है, ये पावर 2 हो गया, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। सो इट बिकम्स व्हाट ml - 1 t - 2, ये एज इट इज रहेगा, इसका पावर 6 हो जाएगा क्योंकि इसका भी स्क्वायर होगा, L3 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, ये L टू द पावर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ जो डायमेंशनल फार्मूला a का मिलेगा ml 5 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज -1 इट इज +6, so it becomes L to the power 5 and t to the power 2. This is the dimensional formula of A, and similarly you can find the dimensional formula of B, because the dimensional formula of volume will be same as the dimensional formula of B, so you can write this B is equal to V, okay, and V का dimensional formula आप निकाल चुके हैं, it is L to the power 3, so the dimensional formula B becomes equals to L to the power 3, clear students? Okay, thank you so much.